Okay, so the recording has begun now. Okay, so in the last class we talked about the distribution, right? That many times the distribution is skewed. Our data is distributed in a non-symmetric manner, and I showed you guys some examples for that. Let's have a look at one of those examples for now. सर Yes. सर आप प्रैक्टिकल कुछ करवाओगे आज? We are going to see a few things. For example, I'm going to plot histogram, and we are going to draw fraction histogram as well. So these are the only two things that we'll be plotting basically. Okay. बाकी सब कुछ is ओके theoretical for now. Okay. So I was talking about skewed data set, right? So let's have a look at skewed distribution. Okay. Spelling mistake. Yeah, skew decision. So we saw this in last class that many a times our data is not properly distributed, is not symmetrically distributed. So what happens when our data is not symmetrically distributed is that the mean, median, and mode differ completely. For example, if my data is skewed on the right hand side, right, on the far of the y-axis, or should I say deeper into the x-axis, then our mean is more than the median, which is clearly mentioned here, right? Our mean is more than the median, and our median is more or less. I mean, it could be more often than not, it is greater than mode. So our mean is greater than median, and our median is greater than mode. So what happens here is that since mean is totally impacted in such a case, and this is same for the reverse as well. When we have skewed on this side, when our data is skewed on this side and not on this side, same situation is there as well. But for this side, our mean will be smaller than the median, and our median will be smaller than the mode. Exact the opposite. Okay. So what happens in these two cases is our mean is completely impacted and becomes useless for us. That's why we study trimmed mean as well, right? So trimmed mean solves that problem for us to some great extent. But if we are not using trimmed mean, then the mean here becomes totally useless for us. And therefore, whenever we have a skewed data set and we are not going for trimmed or weighted solutions that we studied in the last class, then we prefer to go for the median as a statistic on the basis of which we are going to analyze our data set, because median is more robust as compared to median or as compared to mean at all the times, no matter what the time is, right? So whenever our data set is skewed, we have to prefer median as a useful statistic rather than the mean. Now, the reason we have been talking about normal distribution quite a lot lately is because uh, the 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 more theoretically defined normal distribution is quite what do we call it, quite balanced, right? Balance on the both sides. Let's have a look at the normal distribution curve for once. Normal distribution. Okay. Now, if you look at this normal distribution curve, this curve is properly distributed. Okay, symmetric on both the sides. So, as you can see, -1 SD, -2 SD, -3 SD. The difference is 5, 5, 5, 5, 5, 5. So, the thing about normal distribution and with symmetric distribution is the more symmetric it is, the more easier it is to calculate the statistic, the more easier it is to compare things. Okay. When it comes to analysis, specifically data analysis, more often than not we are interested in proportionate parts or in fraction part or in relation of a value to, a relation of a value to all other values. For example, we want to compare let's suppose this particular graph is for meeting. Let's suppose this is the time duration for which a meeting went on. So if I want to know that if a meeting has gone for 35 minutes, then if a meeting has gone for 35 minutes, then in that case uh, this meeting is longer by other meetings by how much percentage. So such a question can be easily answered by
these normally distributed graph, because as you can see here that this is mean 30, and then one standard median is 35. And if you remember it very well from the last class, we know that this center one is distributed 34%, almost 34%, and this one is also distributed 34%. This one is 14%, and this one also is 14%, right? So, and then this is almost three I mean almost we have 2.15% something, right? Same for this one, 2.15%, 0.15 and 0.15. So what happens is making a comparison becomes quite easily. So if I'm talking about this 35-minute meeting, then I can easily say that the numbers below this are 50, and here we have 34. So this meeting is 84 large, is longer than 84% of the meetings that happen within the institution or within a particular place. So our analysis becomes a lot more easier when we have a distribution which is symmetric like this. Okay, I'm going to give you an example. Okay, for why the shape of the distribution is really important. Okay, but before that, let's talk about some information. Okay, I want you to answer some questions today. Okay, I'm going to question you guys again and again, and I'm expecting answer from you guys, and you have to answer as quickly as possible. Okay, so I'm going to write a few sentences here. Give me your answer. Okay, the first statement is I have an IQ of, actually, let's not talk about me. X has an IQ of 152. Let's keep it lower. 132. Okay. This is the first statement that we have. Okay. And then we have a second statement. Okay. The second statement goes as uh, uh, let's say there is a rank of people based on their IQ for a particular year. Okay. So based on based on the IQ test done in 2015, done in 2015, my rank of X is uh, let's say उसका rank 100, let's say उसका rank जो है 10,000 समथिंग है, ठीक है, 10,000 है, ठीक है. Then we have third statement. Third statement is uh, IQ of X is higher than 91% people who took the test in 2015. Okay, so I have written three statements here. Which of these three statements gives me the more information, most information as required by any kind of analysis? You can write your answer in the chat box provided by the Google Meet. Okay, so post your answers there, please, quickly. Okay, read the three statements and tell me which of these gives me the most information, and why what kind of more information is provided by this particular point, whichever you mentioned there. Okay, okay, we have one answer for now from Shivali. Okay, from Swati, we have the answer as point number three, statement number three, Himanshi statement number two, Mamta statement number two, other people, Indra statement number two, and you statement number two. Come on, guys, quickly. I want you all to participate. There are more number of people here than the number of answers I've got. I'm going to bring back the statement. He says three. Devisha says two. Okay. Okay. Many of you have answered now. So I'm going to ask
you to write your reasons as well for why do you think those of you who have answered point number 2 as the answer. I want you to write why point number 2 or the statement number 2 is providing most information, more valuable information for analysis. And those who have answered the statement 3, I want you to answer for give the reason for the same. Okay, okay, why the statement number 2 or 3 is right according to you. Give me uh, a reflection of what you are thinking in your answer. Why did you came up with this answer that you just wrote here? Come on, write the answers. I mean, I haven't got a single answer in last 1.5 minutes. Rank of X is given. Okay, okay. So according to you, rank is important. Okay, fair enough. Uh, other people, Shivalia given the reason. I mean, she was the first one to answer previously, and now she's the first one to answer again. Come on, guys, lead up, participate. Anju says, sir, in the second statement, we get to know the rank of X, but in third, there is no use of 91% data given. No use of 91% data given. Okay, okay, okay. Himanshi says the third option does not mention year of. Okay, let me put the year. I mean, third option also has the year. People who take the test in 2015, so they both have the same kind of information. थर्ड में हमें उन सबसे 91% का डेटा भी मिल जाएगा. ओके, ओके, ओके. अदर आंसर्स युक्ता, दिविशा, कोमल, and who else do we have? Yukti, correction, not Yukta. Tonika, Shayesta, Sweetie, Mamta, Ajil. Give your answers. जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक आप क्लियर नहीं होगे. ठीक है, आई मीन सही और गलत जैसा कोई आंसर नहीं है इसमें. द आंसर इज द राइट आंसर, डजंट मैटर व्हाट द इट इज. ओके, we have no idea about those 91%, but in the given thirds we have no idea about those 91%. Okay, ठीक है. पर उस 91% का यूज भी तो तभी होगा ना जब हमें सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारे पास में. मतलब रैंक अगर पता चलेगी तभी तो हम आगे बता पाएंगे कि 91% कितना कैलकुलेट होगा. Okay, okay, fair enough again. Okay, so I guess others are not going to answer me. Okay, rank is in a digit format, so it's understandable. Okay, okay, okay. Now let me put a question. How many of you are from science background? इसका आंसर तो जल्दी से दे सकते हो सभी लोग, राइट? किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था 12th के बाद, जैसे कि आईआईटी हो गया, AIEEE हो गया, यूपीटीयू हो गया, सैट का एग्जाम, या फिर पीसीबी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, सीपीएमटी, आईपीएमटी, या फिर ऐसा कोई भी दूसरा एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि कैट का एग्जाम बहुत लोग एमबीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. तो
Is there anyone who has given any kind of these exam or has any idea about these exams? Even a bit of idea, tiny bit of idea. Come on, answer quickly. We need to reach a point for these set of questions. सर क्वेश्चन पुट करो ना, आप क्या पूछना चाहते हो? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप में से किसी ने नहीं, इससे आगे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो पुट करो। ओके, आप लोग जवाब दोगे उसके बाद पुट करूंगा। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कैट का एग्जाम दिया हो या फिर आपने लेट्स सपोज आपने गेट का एग्जाम या आईआईटी का एग्जाम दिया हो, ठीक है। अब आईआईटी का एग्जाम जब आप देते हो तो उसमें रैंक आती है, राइट? एंड लेट्स से द रैंक दैट अ पर्सन गेट्स इज 19,000। अगर 19,000 रैंक आती है आईआईटी में एक पर्सन की तो उसको एमएनआईटी मिल जाता है, आईआईटी नहीं मिल पाता, पर एमएनआईटी उसको मिल जाता है, ठीक है। नाउ रैंक 19,000 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन रैंक 19,000 मुझे ये नहीं बता रहा कि ये किस परसेंटाइल में है, या फिर रैंक 19,000 मुझे ये नहीं बता रहा है कि ये मीन से या मीडियन से कितना दूर हो सकता है, या फिर कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोगों में कितने लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से कितने लोगों की रैंक आई, और जितने लोगों की रैंक आई उसमें से ये कौन सा रैंक है रिलेटिवली। तो इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास, रैंक रैंक इज अ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, राइट? क्योंकि इसमें हमने रैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो रैंक इज एन ऑर्डर स्टैटिस्टिक, हाउएवर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन that we should be able to get from the third statement is not available from the second statement, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 91% पीपल से ज्यादा बेटर है आपका आईक्यू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कहाँ गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, सीधा ग्राफ को देखते हो एंड यू कैन डायरेक्टली से कि अगर ये 91% तक पहुंच गया है तो ये मीन से 2 डिविएशन आगे होगा। ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड डिविएशन है पॉजिटिव में मीन से, ये उसके बीच में कहीं पे होगा। नाउ कंसीडरिंग दैट दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, ठीक है, और जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह का जो कंपैरिजन होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द रैंक। ओके, रैंक is a good information, good enough information to be honest, but I mean a lot better than the IQ of 122, जहाँ पे अगर किसी कॉमन पर्सन से मैं पूछूं कि IQ क्या है, और आई मीन मेरी IQ 132 अगर मैं किसी को बोलता हूँ, ठीक है, तो उस पर्सन को इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ तभी समझ में आएगा जब उसको मालूम हुआ कि आईक्यू होता क्या है और उसकी जो रेटिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है वो सोचे कि 132 आपके 200 में से आए हों, या फिर हो सकता है कि 132 आपके 1000 में से आए हों, राइट? ही इज नॉट अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द आईक्यू। द प्रॉब्लम विद द सेकंड इज, लेट्स सपोज this thing happened a few years ago. Okay, so a friend of mine gave the exam at one of these really high ranked university, international university, and she got a rank of 65. Now 65 rank looks really good, right? But the problem with the 65 is only 70 people got the rank and she had the rank of 65. So as soon as we got to know the total number of people that were involved, we realized that 65 is not good enough, right? And this is the problem with the second statement. There is a rank given in here, but we are not aware about the total number of people, and hence we cannot judge whether this 10,000 is good enough or not, right? 10,000, this rank of 10,000 could be from 10,000 people itself, right? We do not know that part. So 10,000 rank is available, but it does not tell us about how good or how bad it is, or how bad it is. However, when we reach the statement number 3, it tells us about that this IQ is 91%. The IQ of this person X is higher than 91% people. Now as soon as you read this statement, you can make some judgment about the person. You can make some decision about the person, that okay, this person has some IQ, so there are some things at which some logical things at which this person is going to be way better than other people who have a lower IQ. Right, so that's why statement number 3 becomes more important as compared to statement number 1 and 2, even though both the 1 and 2 are numerical and ordinal data, but and are important in their own ways. However, the information that we get from the statement number 3 is
far more than this than the information that we get from the question number 1 and 2. And this is what analysis is all about. Okay, it's all about comparing something with something and then telling out how good or how bad it is, or how favorable or unfavorable it is. So this is why we have to study a distribution when we study analysis. That's why we are plotting histogram of the data. As soon as we get a data, the first thing that we do is plot a histogram for the same. For example, let's say I have the rating of cricketers who were the highest rating for cricketers who achieved, I mean, highest rating for any cricketer who achieved in their life, right? So I have a data set of all the players here. Okay, I'm going to actually let's go down. Okay, I'm going to plot a histogram of these people. Okay, so I'm going to put this here. So I have some information about the ICC test ranking of the players and the ratings that they got. Okay, so the first thing that I do whenever I get a data set is plot its histogram in order to get to know what is the kind of distribution for this particular data set. Okay, so let's say I do not give the bins information initially, and I just plot the histogram directly. Okay, so I got a histogram here, and this histogram has a figure somewhat like this. So I can see that there is a little bit of tail on the right hand side, which means my mean is going to be a little bit more than the median, and my median is going to be a little bit more than the mode. So these are some information which I can get directly from the histogram itself. This is the first thing that we do whenever we get a data set. Now, once we have the histogram, we have some idea about the distribution, and then we can do all those kind of analysis, all those kind of changes. For example, we are talking about trimming. So let's say we get rid of these two parts or these three, right? These two or three, then the last two bins. Then if we get rid of these two, then we get something like a more normally distributed data, right? I mean, although it won't be the right thing to do, but in this current scenario. But the point is, as soon as we see the histogram, we have idea about the distribution. And the reason we are interested in distribution is because we have to make some comparative decision, and that can be made directly and quite easily with the help of a probability distribution. Okay. Okay, so now let's talk about okay, now that we understand that we are concerned about the proportion, which is like greater than or lesser than or a certain value in a distribution. The next question I have is, जैसे ही हम लोग हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, नंबर्स प्लॉट है 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30,000, right? So there are so many people, right? This is the count of the people basically. Okay, so now the second question I have is, now that we know that proportion is more important, greater than or less than is more important than rank. ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई. उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जो हमारा डेटा सेट है, जो हम हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हैं, क्या हमें उसमें एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी चाहिए या फिर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना चाहिए? What kind of frequency should we be plotting? Okay. Question 2 is, what kind of frequency should be plotted? Option number A is absolute frequency. Jaldi jaldi answer do. I haven't received a single answer yet. Absolute frequency. The B option is relative frequency. एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो जो सिंपल काउंट हम करते आते हैं कि जो नंबर 5 है वो 10 बार आता है, दैट्स एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10,000 हैं और 10,000 में से जो नंबर 5 है वो 10 बार आया है, विच मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 10,000. तो वो उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 10 डिवाइडेड बाय 10,000. तो हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करना चाहिए और क्यों, इसका जवाब दिया जाए.
which kind of frequency should be using in our histogram? Absolute frequency or relative frequency? This is a simple question as compared to the previous question asked. What kind of frequency should we be using while plotting a histogram? Absolute frequency or relative frequency? For now, up till now, we have learned to plot absolute frequency only, but today we'll have a look at the relative frequency as well. Okay. Uh, Answers, please, quickly. Absolute frequency, okay. Anju says relative frequency, okay. We both always go opposite to each other. Sweetie says relative frequency, okay. Swati also says relative frequency. Other people pick up your speed. I mean, if you are listening, answer. Okay. Komal says relative. Okay. Okay. Relative frequency basically means, let's say we have 10,000 data points. Okay. And while plotting histogram, what we basically try to do is that, let's say the number between 200 to 210, the count of such numbers is 100. Okay, then the relative frequency for all the data items that fall in the range of 200 to 210 will be 100 divided by the total total number of terms या फिर or data points. Okay, so the numbers that lie between 200 to 210 is 100. Okay, the total number of terms that lie between 200 to 210 is 100, and total number of data points that we have is 10,000. Therefore, the relative frequency is 100 divided by 10,000. Okay, is it clear? Rashi says relative. Okay, I hope it's clear. If it's not clear, let me know. I can explain it again. Okay, it's clear. Good. So your answer, Yukti. What is your answer? Well, Ashna says relative frequency. So says Yukti. Okay. Himanshi, since you said absolute frequency, I'm just going to ask you your reason for saying absolute frequency, and one of you also prepare your answer for your reason for relative frequency, okay? Because I want to get into what you are trying to think here, okay? So हिमांशी तुम बताओ कि आपने absolute frequency answer क्यों बताया? You are the only one who gave this answer. क्योंकि रिलेटिव आपने बाद में समझाया. ओके, अदरवाइज आपका आंसर भी रिलेटिव था. ओके, अब बाकी कोई? अच्छा, अगर आपका आंसर रिलेटिव होता तो क्यों होता अब इसको समझने के बाद? डाटा प्रॉपर्ली बनाया जा सकता है इससे. डेटा तो सिंपल काउंट के साथ भी प्रॉपर्ली बना हुआ है. इसमें तो बस स्केलिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो राइट? स्केलिंग परफेक्ट होगी ना इसके अंदर. कैसे? देखो, फर्क नहीं पड़ता मैं हिस्टोग्राम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी से बनाऊं या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाऊं, हिस्टोग्राम एक ही बन के आएगा. मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है? आप लोग आंसर अपना तैयार करके रखो. मैं आपको एक बार हिस्टोग्राम बना के दिखा भी देता हूं. ये सिंपल हिस्टोग्राम हमारे पास, एंड this is the histogram with relative frequency. Okay. Okay. I'm going to show you both these graphs, and you'll find that there is no difference between them. See, this and this, they are same. This is same. This is same. No difference. They both are absolutely same. So why is it that you have answered for this
this thing called relative frequency. Why did you went for that? जल्दी जवाब दो बाबा. What do you think is a relative frequency a better estimate? I mean, a better way to plot a histogram than सर absolute शायद frequency. से जो डेटा होगा वो इक्वल इंटरवल्स में, मतलब बार बार हमें बिल्कुल पर्टिकुलर ऐसे कुछ क्लियर मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, हम एक प्रोबेबिलिटी के थ्रू यूज कर लें ऐसा कुछ. Okay, the last part was close to right. बाकी जो आपका बिन साइज के बारे में आपने बोला वो तो देखो दोनों में सेम है. 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000. तभी तो हिस्टोग्राम भी सेम है. देखो सब कुछ सेम है. तो besides the last part, everything else seemed right. Uh, Anyone else who wants to try any other answer? जल्दी बताओ. Okay, looks like we're not going to get any answer for that. अच्छा चलो, अब इन दोनों फिगर को ही देखो. इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो. इन दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है? Okay, this is the figure number 1 and this is the figure number 2. Besides this, जो ये लाइन नीचे दिखाई दे रही है इसको छोड़ के, ठीक है, ये डिफरेंस क्या जो है? साइड ये में साइड में जो ये वर्टिकल, नंबरिंग जो ये आती है ना, 0 पॉइंट, हाँ. हाँ, एब्सोल्यूट में बाई थोड़ा एक्सिस वाली कॉम्प्लेक्स लाइन. होता है. एब्सोल्यूट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जो अपना रिलेटिव है उसमें थोड़ा, समझ जाओ ना सर. अरे इसमें एब्सोल्यूट में बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल करेक्ट मेजर करके, और रिलेटिव में थोड़ा बहुत चल जाता है ऊपर नीचे, ऐसा कुछ है. नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि रिलेटिव में थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई. ऐसा नहीं होता. ऐसा कुछ भी नहीं है. ध्यान से देखोगे अगर आप तो आपको नजर आएगा कि जो यहाँ पे जो फिगर्स लिखे गए हैं वो 0 to 1 के बीच में है. राइट, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 0 to 1 के बीच में है. रेदर 1 से छोटे ही हैं सारे. ठीक है. और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं. ये 5000 लोग, 10,000 लोग, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, बहुत सारे क्रिकेटर्स खेले. राइट, एट ऑल मैनी डिफरेंट लेवल्स. तो यहाँ पे जो बता रहा है कि लगभग 30,000 लोगों ने के जो पॉइंट्स हैं वो 200 से 400 के बीच में रहे. पूरे लाइफ लाइफ का जो हाईएस्ट पॉइंट था 25,000 पॉइंट पे अगर देखा जाए तो लगभग 0 से 200 के बीच में ऐसे लोग हैं जिनके 25,000 पॉइंट्स ही रह गए. 0 से 100 के बीच में देखें तो लगभग 9,000 लोग ऐसे हैं जिनके पॉइंट्स 0 से 100 के बीच में ही रह गए. और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि 900 से 1000 के आसपास कहीं पहुंच पाए हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेटा सेट. लेकिन ये तो हमें एब्सोल्यूट काउंट से मालूम पड़ रहा है. लेकिन अगर यही चीज मुझे देखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो आप देखो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके लिए स्पेसिफिकली तो आपको मालूम पड़ेगा लगभग 5% लोग ही ऐसे थे. 0.05 है ना, विच मीन्स के लगभग 5% क्रिकेटर्स ऐसे हुए हैं जो कि 0 से 100 के बीच में उनका हाईएस्ट पॉइंट रह गया. और इसी की तरीके से बात करें तो 800 से 900, 900 से 1000, तो 900 से 1000 के बीच में जो रेटिंग पॉइंट है वो लगभग 1 से 1.5% लोगों ने, लगभग 1.5% क्रिकेटर्स ही ऐसे हुए हैं आज तक की हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में, जो कि 900 से 1000 के बीच में कहीं पे, ठीक है, 900 से 1000 के आसपास जो अपने लिए रेटिंग पॉइंट्स इकट्ठी कर पाए हैं, हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट उनके पूरे करियर में. तो अब हमें इसके यहाँ पे जो काउंट पे हमें ये चीजें मालूम नहीं पड़ रही थी कौन कितना परसेंट है कौन कितना परसेंट नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखते ही हमें मालूम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेटिव इंफॉर्मेशन मालूम पड़ रही है एज कम्पेयर टू जस्ट एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल हियर. एंड देयरफॉर a histogram which is plotted with relative frequency is more important, is more informational as compared to a histogram which is plotted using this. ठीक है. तो ये जो हिस्टोग्राम है ये अगर आप इसका टोटल सम करके निकालोगे ना तो ये लगभग 1 के आसपास जाएगा. ठीक है. बट द पॉइंट इज कि ये हिस्टोग्राम हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये इंफॉर्मेशन हमें
डिस्ट्रीब्यूशन की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 4.5 से 5% लोग यहाँ इस कैटेगरी में हैं, और ये 12% 13% लोग कुछ इस कैटेगरी में है, 16% लोग कुछ कैटेगरी में है, 17% लोग इस कैटेगरी में है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा और मोर क्लियर इंफॉर्मेशन मालूम पड़ रहा है। इसीलिए जब भी हम डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जो हिस्टोग्राम से जो शुरुआत करेंगे, वो उस हिस्टोग्राम में हम प्रिफर करेंगे कि जो हमारा काउंट है वो एब्सोल्यूट ना होने के बजाय वो रिलेटिव हो, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा रिलेटिव होगा, तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगी कंपैरिजन के लिए। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर सभी लोग फिर तो एब्सोल्यूट जो है वो तो इंफॉर्मेशन जो देगा वो थोड़ी थोड़ी गलत ही देगा। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है वो, और प्रॉपरली वो बता भी तो नहीं पा रहा है। हाँ वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो, ये तो हिस्टोग्राम है, ये अपना ही काम कर रहा है जो इसको दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम थोड़े से लालची होते हैं, तो हमने कहा कि हिस्टोग्राम में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे काउंट है जो यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी को जो हमने प्लॉट किया हुआ है उसको अब हमने रिलेटिव कर दिया। तो अब हम परसेंटेज में भी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं, हम रिलेटिव इंफॉर्मेशन भी देख पा रहे हैं कि टोटल के कंपैरिजन में मतलब सिर्फ इतने ही 5% लोग ही हैं जो कि इतने के बीच में रह गए। और अगर कोई ऐसा क्रिकेटर है जिसका पॉइंट 900 से 1000 के बीच में, देन वी कैन से कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट, द ऑल टाइम बेस्ट में से एक होगा, क्योंकि इसके ये लगभग 1.5% लोगों की कैटेगरी में आता है क्रिकेटर्स की, सिर्फ 1.5% लोग ही ऐसा कर पाए हैं आज तक। तो दिस मस्ट बी क्वाइट अ रेयर थिंग टू डू, राइट। तो अगर कोई क्रिकेटर बोलता है कि ये बहुत ही रेयर खिलाड़ी, अगर रोनाल्डो को और मेसी को हम ग्रेट प्लेयर्स बोलते हैं, क्योंकि उनका 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 परफॉर्मेंस लेवल कुछ ऐसा है कि जो कि लगभग टॉप 1.5-2% के अंदर ही आता है उनका भी, ठीक है। तो 20 मैराडोना हो गया, राइट। तो ऑल दिस प्लेयर्स कम इन पर्टिकुलर कैटेगरी, जो कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ क्वाइट इजीली देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू सिंपल फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक और चीज मैं चाहता हूं कि आप हिस्टोग्राम में ऑब्जर्व करो, ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आसानी से मूव कर पाए। तो अभी तक जो हमने हिस्टोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, ये जो हमने हिस्टोग्राम बनाए हैं इसमें हमने बिन का साइज डिफाइन नहीं किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बिन का साइज डिफाइन करूंगा, और मैं देखना चाहता हूं कि बिन का साइज इंप्रूव करने से, चेंज करने से, बड़ा करने से डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू पास बिन्स हियर, ओके। बिन्स इज इक्वल्स टू, पहले एक की जगह 10 ट्राई करते हैं, राइट, एंड लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी गेट हियर इन बोथ ऑफ दीज, ओके। बिन्स इक्वल्स टू 10. Let's see the graph that we get now. ओके, तो ये पहले वाला ही ग्राफ है जिसमें बाय डिफॉल्ट बिन्स की वैल्यू 10 थी। अभी 10 को बढ़ा के आई एम गोइंग टू टेक 50, ओके। आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू 50 नाउ। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी गेट, ओके। जैसे ही हमने 50 को प्लॉट किया, 50 के लिए प्लॉट किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा बीच में डाउन भी है, फिर अप जा रहा है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ दीज, ओके। अभी बढ़ा के इसको बिन्स को 100 कर देते हैं, ठीक है, एंड लेट्स सी कि अब डिस्ट्रीब्यूशन जो दिख रहा है हमें वो कैसा हो रहा है, ठीक है। ओके, दिस शुड, द बिन्स जैसे जैसे पतले होते जाएंगे, देखो यहाँ पतला होता गया, तो और भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती चली गई हमें दोनों ही फॉर्मेट में। और ये देखो यहाँ पे परसेंटेज और भी लो होता चला गया। अब हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो 950 पॉइंट पहुंचे हैं लोग, इनकी ये लोग लगभग 1% से भी कम लोग ही ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में यहाँ पे पहुंचे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। अब इसको बढ़ा के 1000 कर देते हैं। ओके, तो हमें मालूम पड़ा कि कुछ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि कभी पहुंचे ही नहीं है। कोई भी पर्सन उस डेटा पॉइंट को मतलब पहुंचा नहीं है, उससे पहले है, उसके बाद में है। सिमिलरली यहाँ पे भी लास्ट में कुछ ऐसा ही है, राइट। उसके बाद देखो जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा ये बिगड़ता चला जा रहा है, ये नॉर्मल जैसा दिखाई नहीं दे रहा है अभी, ठीक है। अब इसको 10,000 कर लेते हैं,
ठीक है। It's going to take a little bit of time, सारा समझ लेगा ये। सर जो डेटा कभी पहुंचा ही नहीं, तो वो हमें पहले 10 बिन्स में क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि उस टाइम ये रेंज के अंदर कवर हो रहा था ना। लेट्स सपोज 400 से 500 का रेंज था, तो 400 से 500 के बीच में ये डेटा पॉइंट नहीं है, वो भी उसी में कवर हो गया था। ठीक है, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कोई ऐसा पॉइंट भी है इसमें बीच में जो कि मिसिंग है ना। मैंने बोला 2 से 5 जिनकी रैंक जिनके मार्क्स 90 टू 100 आए हैं वो मेरे पास आ जाए, तो 90 टू 100 वाले सभी आ गए मेरे पास। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 95, 96, 97, 98, 99, 100 इन ये 5-6 नंबर जिसके आए वो मेरे पास आए हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे को 96 मिला ना हो, तो इसलिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अलग नजर आ रहा है, काफी ज्यादा अलग। ठीक है, अब मैं इसको और बढ़ाता चला जाऊं, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन और भी खराब होता चला जाएगा, एकदम खराब होता चला जाएगा। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके हिस्टोग्राम की भी अपनी खुद की लिमिट्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमें हिस्टोग्राम से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और उसके लिए हमें हिस्टोग्राम से मूव करना पड़ेगा एक स्मूथ कर्व की तरफ। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये क्या है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप बिन्स चेंज कर रहे हो, कोई भी बिन का साइज ऐसा नहीं है जो कि आप बोलो कि ये परफेक्ट साइज है, इसी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हमें ये इंफॉर्मेशन दे देता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन जैसे जैसे बिन्स का साइज बढ़ता चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन भी गड़बड़ होता चला जाएगा। तो इस केस को संभालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं स्मूदर वर्जन ऑफ हिस्टोग्राम, जिसको बोलते हैं हम लोग कर्नल डेंसिटी कर्व बेसिकली। ठीक है, तो कर्नल डेंसिटी कर्व का हम प्लॉट करते हैं, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कर्नल डेंसिटी कर्व कैसे बन के आता है। ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ भी सको कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर्नल डेंसिटी कर्व। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट अ, ठीक है, कर्नल डेंसिटी कर्व। ठीक है, और मैं ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको छोटा कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, वी वांट टू सेव द टाइम एज वेल। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में क्या था, ये अभी भी ना डिस्क्रीट पॉइंट्स हमें दे रहा था उसमें। तो हमें क्या चाहिए, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बन के आए ना, वो थोड़ा सा प्रॉपरली कर्व बन के आए मेरे पास। ठीक है, हिस्टोग्राम, ओके, डेटा रेटिंग KDE, और ये है बिन्स 10। ठीक है, SPN while showing it in a different, okay, I have to write show point here as well so that we get different graph for these. Okay, okay, so now we have, see this particular line that we are getting here, this is the estimation of distribution using kernel density information. This is basically trying to plot probability distribution by itself. तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं और मैं पहले वाले ग्राफ्स को देखने की कोशिश करूं अगर, तो हमें काफी हद तक नजर आएगा कि ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन काफी एक जैसी है। ठीक है, काफी ज्यादा एक जैसी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बिन साइज सेट कर दूं, ठीक है, आप गोइंग टू प्लॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन KDE here, ओके, तो यहाँ पे बिन्स का साइज मैं इसका भी 100 कर दूं, तो अब मेरे पास जो कर्व बन के आएगा, इट विल बी अ मच बेटर एस्टिमेशन ऑफ माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू प्रीवियसली। तो ये जो है, ये मुझे बता रहा है कि मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखाई देता है मेरे डेटा के अंदर। और अब जो है हिस्टोग्राम के बाद हम जो कर्नल डेंसिटी कर्व की तरफ मूव किए हैं, ये मुझे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि मुझे बता रहा है कि मीन लगभग कहीं ये जो हाफ पॉइंट है ना, ये जो पीक पॉइंट है, मोड मेरा यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ठीक है, मेरा मीडियन कुछ इसके थोड़ा आगे लाई करेगा और मेरा मोड कुछ आगे लाई करेगा। अगेन क्योंकि हमें मालूम है हिस्टोग्राम या फिर डेंसिटी कर्व दोनों को देख के कि यहाँ पे टेल है, टेल मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा डेटा होता है ना, तो हम ऐसे डेटा को भी हम प्लॉट कर सकते हैं इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हमारे पास जो डेटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर नहीं है,
तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लॉट करने के लिए पहले हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस मालूम भी होनी चाहिए, जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की और हम नॉर्मल की ही बात आगे भी करेंगे। हम कोई और डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले नहीं है इस कोर्स के अंदर सिवाय नॉर्मल। ठीक है, तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं। आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन रीजन्स को देखते हैं कि वो रीजन्स क्या होते हैं और कैसे मैं इस ग्राफ को और भी स्मूथली प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये काम आज आप लोगों को घर पे करके देखना है। ठीक है, इनमें से कुछ काम मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ काम आप लोग खुद भी करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को रीजन समझ में आ रहा है ना कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर क्यों किसी भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, तो ओके, सो वी हैव right, so we have a normal distribution. So let's have a look at the normal distribution first. And I have taught you guys about the standard deviation, right? I have already taught you about the standard deviation. Let's have a look at the formula for standard deviation. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इसको हम z भी बोलते हैं कई बार, और उसका मतलब होता है कि आप x में से माइनस करते हो। ठीक है, यू सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम x माइनस मीन डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म जो होती है हमारी। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं उसके साथ डिविएशन के साथ। ठीक है, तो ओके, यूजिंग सिग्मा। सिग्मा कैसे लिखते हैं यहाँ पे मैं z score, basically I'm not going to call it standard deviation, I'm going to call it z. okay, z is equals to x minus mean divided by sigma. ठीक है, x minus mean divided by sigma. sigma is basically जो हमने वहाँ पे SD पढ़ा था हमने। ठीक है, ये वही है। तो लेट्स गो बैक टू द पॉइंट वेयर वी वर। ठीक है, तो z ये हमारा z स्कोर है बेसिकली, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। z स्कोर इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा। और ये z स्कोर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ठीक है, z स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिविएशन नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में जो कि हम अक्सर देखा करते हैं। जैसे कि ये हमारा 0 है, ये हो गया हमारा मीन। इसके बाद ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका z1 है, ये आपका z2 है, आपका z3, z4, z5 है। ठीक है, उसी तरीके से आप इधर जाएंगे तो ये -g1, -g2, -g3, -g4, -g5। नेगेटिव डिविएशन का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव g है उनका मतलब बेसिकली यही होता है कि आपकी जो वैल्यूज जहाँ पे लाई कर रही है वो मीन से कम है, और पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू जो यहाँ पे लाई कर रही है वो मीन से ज्यादा है, विच इज क्वाइट क्लियरली विजिबल फ्रॉम हियर, राइट। अगर मेरी वैल्यू x जो है ये मेरा मीन से छोटा होगा तो ये टर्म मेरा नेगेटिव हो जाएगा, राइट। दिस टर्म विल बिकम नेगेटिव इफ x इज लेसर देन मीन। ठीक है, तो इफ x इज लेसर देन मीन तो मेरा z स्कोर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन मीन तो मेरा z स्कोर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ गेट्स प्लॉटेड। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट किया है ये उसी के बेसिस पे प्लॉट होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये z स्कोर का मतलब क्या होता है, क्यों हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी का कर्व में जो हमारा जो डेटा सेट है, ठीक है, जिसका कि हमने ये जो प्लॉट किया हुआ है, तो जब हम इसका z स्कोर प्लॉट करेंगे, ठीक है, जब हम इसका z स्कोर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो अभी उसको समझते हैं कि x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा का मतलब क्या होता है। तो एक ग्राफ देख लेते हैं, 2D ग्राफ, जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं। ग्राफ, ग्राफ, okay, so we have a two-dimensional graph here. ठीक है, this particular graph I want you to have a look at this one. ठीक है, so we have a two-dimensional graph here, और लेट्स सपोज कि हमारा ग्राफ जो है ना वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से ऐसे जाता है और वो
ऐसे बन के खत्म हो रहा है, ठीक है। और इफ आई कुड शो इट टू यू ऑन पेपर, just a second, I'll draw it on the paper. I don't know if you guys can see that. Yeah. Okay, I have a figure here. I hope you guys can see it. Okay, so I have a figure here, और जो ये मेरा नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सा प्लॉट किया हुआ है मैंने, वो मेरा एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली नहीं है, और वो मेरा सॉरी सॉरी स्मॉल मिस्टेक, should be closer to the x axis. Okay, so I have this graph here. This is the x-axis and this is the y-axis. और ये मेरा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर अ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। इस डेटा में कुछ वैल्यूज जो है मेरी नेगेटिव भी जा रही हैं, एज यू कैन सी हियर देयर आर सम डेटा पॉइंट्स व्हिच आर सर नेगेटिव। थोड़ा आगे करो, दिख ही नहीं रहा। अभी दिख रहा है? हाँ, ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको मालूम पड़ेगा कि देयर आर सम डेटा पॉइंट्स जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी जा रहे हैं, और कुछ डेटा पॉइंट्स है जो ज्यादा डेटा पॉइंट्स मेरे वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास डेटा कुछ ऐसा है तो इसका मीन मेरा मेरा जो लगभग है वो पॉजिटिव साइड में ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा सिमेट्रिक है ये, ठीक है। और इसका मीन पॉजिटिव साइड पे ही होगा, इतना पार्ट तो क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं चाहता क्या हूं कि मैं इसको मैं यहाँ पे इस ग्राफ को शिफ्ट करना चाहता हूँ। शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि मैं इसका जो मीन है उसको शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, और उसको करते कैसे हैं? अगर आप इसी टर्म को ध्यान से देखोगे जो हमने जी स्कोर कैलकुलेट करते हुए किया है, जी स्कोर में हमने क्या किया है, एक्स माइनस मीन, ठीक है। तो जो भी मेरा मीन है, ठीक है, हमने वो x में से माइनस किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए शिफ्ट किया है, और जैसे ही मैं ये x माइनस मीन करूंगा, ठीक है, और मैं इन x माइनस मीन जितने भी हर एक टर्म का x माइनस मीन करूंगा और उसके बाद उनका सम निकालूंगा, तो मेरे पास सम क्या निकल के आएगा? ये हमने पहले किया हुआ है 2 क्लास पहले, जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पहली बार देखा था, दूसरी बार आएगी। अगर मेरे पास जितने भी एक्साइज हैं उनमें से मैं अपना मीन माइनस कर दूं, और मीन माइनस करने के बाद जो भी टर्म्स मेरे पास आई है उनका सम कर दूं, तो मेरा मीन क्या होगा? मेरा सम इक्वल टू कितना आएगा? व्हाट विल बी द सम? व्हाट विल बी द सम अगर मैं जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सब में से मीन माइनस कर दूं, और फिर जो भी माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आई सबका समेशन कर दूं, तो मेरे पास सम क्या आएगा? फाइनल सम। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस, किसी ने बताया था। ओके, लेट्स से वी हैव डेटा पॉइंट्स x इक्वल्स टू 3 7 5 4 9 एंड 2। लेट्स सपोज हमारे पास ये 5 डेटा पॉइंट है, तो इनका मीन बेसिकली निकल के आएगा 9 2 11 11 4 15 और 10 25, ठीक है। पहले तो हमने सम निकाला, सम निकल के आया हमारे पास 25, ठीक है। इसका मीन हो जाएगा 5, ठीक है। क्यों? 25 है टोटल सम है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x माइनस मीन कर दिया, x माइनस मीन सभी टर्म्स के लिए, ठीक है। तो पहले टर्म में जब मैंने x 3 माइनस 5 किया, 3 माइनस 5, फिर उसके बाद 7 माइनस 5, उसके बाद 4 माइनस 5, उसके बाद 9 माइनस 5, उसके बाद 2 माइनस 5। लेट्स से कि वैल्यूज क्या क्या मिली, -2, ठीक है। 7 माइनस 5 इज 2, 4 minus 5 is -1, 9 minus 5 is 4, and 2 minus 5 is -3। तो हमारे पास यहाँ पे सम कितना निकल गया है? 0 सर। 0। गुड। तो
जब भी हम अपने डेटा को शिफ्ट करते हैं उसकी पोजीशन विया दिस वे एक्स माइनस मीन करके, तो हमारा जो सम ऑफ एक्सेस हो जाता है, यानी जब हम दोबारा से जो हमारे पास एक्स माइनस मीन करके जो हमारे पास नया एक्स आया है, यानी कि ये जो 3 - 5 है, इसको बोल सकता हूं मैं नया एक्स आई, एक्स एक्स बार वन। ठीक है, एक्स बार वन क्या हो गया, 3 - 5 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक्स बार टू, ये मेरा नया फॉर्म हो गया है, x1 और x2 का ये नया फॉर्म है। ठीक है, तो जो नया फॉर्म है मेरा नंबर्स का वो है -2 2। ठीक है, और उसी तरीके से -2 2 और -1 और 4 और -3। तो अब जो मेरा डेटा सेट है वो मेरा कन्वर्ट हो चुका है, नया x जो मेरा बन के आया है वो है -2 2 और -1 4 और -3। तो जब ये जो नए नंबर्स मेरे पास आए हैं, यानी कि शिफ्ट करने के बाद अब जो मेरा x का तरीका बदल गया है, इसका जब भी मैं सम निकालने की कोशिश करूंगा सम हमेशा 0 निकल के आएगा, विच मीन्स कि जब मैं इसका मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि यहाँ 5 है, तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा मीन हमेशा 0 होता है उसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा जो कि पहले यहाँ पे था, where is the pen now? Okay, I think lost the pen. Okay, here it is. ठीक है, तो अभी तक जो डेटा मेरा यहाँ पे था, ठीक है, वो अब शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से कि इसका मीन पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल बीच में एक्सेस में हो, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट नाउ। तो अब मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो अब मेरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, जहां पे मेरा ग्राफ का जो फॉर्मेट है वो ऐसे चेंज हुआ है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है कि जो मीन की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की सॉरी हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या सर होगी। नहीं दिखा ग्राफ। अच्छा, दिखाई नहीं दिया, ओके, अभी दिखा। हाँ ओके, तो अभी जो शिफ्ट किया हमने उसकी वजह से यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, अभी मेरा मीन वाला जो पॉइंट है वो वहां पे शिफ्ट हो गया है। सर यस, अगर ऐसे हम किसी भी डाटा का करेंगे तो उसका मीन तो हर बार ही 0 आएगा, तो फिर ऐसे तो उसका हर टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही आएगा। एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा, और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास जो डेटा अभी हमने देखा, जैसे कि अभी जो हमने इसका ये भी ना एक ये एस्टिमेशन ऑफ ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो आपका एस्टिमेट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन होके आया है ना, ये नॉर्मल जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही मतलब दूर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अगर मैं सिंपली इसी के ऊपर मैं सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, तो जो मेरे एस्टिमेशन होंगे, ठीक है, जो हम स्टैटिस्टिक्स का जो काम है एस्टिमेशन का, जो कोई भी डिसीजन हम इसके ऊपर बेस करेंगे वो हमारा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा उसका प्रोडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड से अभी काफी दूर है, अभी दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ के क्लोजर होगा वो, उतना ही आसान हमारे लिए प्रिडिक्शन होगा, उतना ही आसान हमारे लिए उसके ऊपर काम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा का इस्तेमाल करके हम उसको एनालाइज करके उसके ऊपर कुछ प्रिडिक्शन करें, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन करूं, तो मैं चाहूंगा कि लेट्स सपोज कि स्टॉक मार्केट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं क्या चाहूंगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है मेरा डेली डेटा का, वो जितना ज्यादा क्लोजर टू नॉर्मल हो, उतना ही ज्यादा मेरे लिए कल के लिए प्रिडिक्शन करना आसान होगा। हालांकि नॉर्मली आई मीन स्टॉक मार्केट काफी अलग चीज है, नॉट द बेस्ट ऑफ द एग्जांपल, बट जस्ट अ पॉइंट टू मेक। ओके, हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम नॉर्मल टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो नॉर्मल बेसिकली इसी चीज के लिए होता है, विच इट मींस कि अगर कोई चीज नॉर्मल है, इट मींस कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो 68% एरिया में लाई करता है। 68% एरिया का मतलब है कि फर्स्ट डिविएशन के अंदर, फर्स्ट पॉजिटिव और फर्स्ट नेगेटिव के बीच में वो लाई करता है। ठीक है,
So this is what we basically meant when we try to shift our data. दूसरा काम क्या करते हैं हम जी स्कोर कैलकुलेट करते वक्त कि शिफ्ट करने के अलावा शिफ्ट जैसे ही हमने टर्म को माइनस किया, हमने ऊपर टर्म को यहाँ पर माइनस किया, इस पार्ट से हो गया हमारे पास शिफ्ट। लेकिन अब हम उसको स्केल भी करेंगे, ठीक है। हमने सिग्मा से डिवाइड किया, सिग्मा से डिवाइड करने का मतलब क्या है, स्केल अप या स्केल डाउन। अगर सिग्मा की वैल्यू 1 से नीचे है, ठीक है, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मेरा जी जो मेरे पास ये ग्राफ बन के आया हुआ था ना, जो ग्राफ बन के आया हुआ है, इसकी हाइट बढ़ जाएगी अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर सिग्मा की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, मैथमेटिकली इसको समझते हैं पहले, ठीक है, मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 10 और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 0.9 से, तो वैल्यू क्या आएगी, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 11.111 ऐसे करते हुए चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी नंबर को उसके छोटे नंबर से डिवाइड कर 0 to 1 के बीच में किसी नंबर से डिवाइड करूं, तो जो नंबर हमें आउटपुट में मिलेगा उससे डिवाइड करने के बाद वो हमेशा उससे बड़ा होगा। आप 10 को डिवाइड कर लो 0.7 से, किसी भी नंबर को 0 to 1 के बीच में उससे डिवाइड कर लो, ठीक है, ये आपको मिलेगा 14 के आसपास, राइट, 14 के आसपास, ठीक है, तो 14.3 हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके। लेकिन अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 1.2 से या फिर 1.1 से कर लेते हैं पहले, अगर आप इसको 1.1 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा आपके लिए 9 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये है कि अभी जो नंबर है वो छोटा होके आ रहा है, राइट, 9.09 समथिंग, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होगा, जब भी हमारा सिग्मा यानी वेरिएंस, ठीक है, अगर सिग्मा का वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में है तो हमारा जी स्कोर का जो हाइट है, आई मीन जो हमारा ग्राफ बन के आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हाइट हमारा बढ़ जाएगा 0 से 1 के लिए। और 1 से ज्यादा बड़ा नंबर है अगर, तो वो हाइट मेरी छोटी हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो मेरा मोड है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर फिगर के अंदर। तो अभी जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें हमने यही काम किया है। सबसे पहला काम किया है यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करने का एक्स मीन के साथ, और दूसरा सिग्मा के साथ हमने उसको क्या किया है, उसको हमने स्केल डाउन या स्केल अप किया है। तो ये दोनों काम जब भी हम डेटा के ऊपर करते हैं तो हमारा डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके काफी करीब हो जाता है। और ऐसे डेटा सेट के ऊपर काम करना इज अ लॉट मोर इजियर, उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करना, उसके ऊपर किसी भी तरह का एनालिसिस करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए जी स्कोर को हम कई बार जी स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं। तो कई बार हम काम करते वक्त हम क्या करेंगे कि जो हमारा हमने इससे पहले भी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन मेथड पढ़े थे क्लास में, उसी तरीके से ये भी है और ये काफी ज्यादा बेटर लगता है मुझे हमेशा। तो हम अपने हर एक कॉलम को इसी तरीके से स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं, और हर एक कॉलम अगर हमारा प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज हो इस तरीके से तो इसके ऊपर डिसीजन बनाना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। हर एक कॉलम हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास होगा, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मैं, तो हम जी स्कोर के साथ स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं जिससे वो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के काफी करीब हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है सभी को कि मीन 0 कैसे हुआ, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 कैसे हुआ। यस सर। ठीक है, तो मीन और अब देखते हैं कि इसका रिलेशन जो हमने जी स्कोर निकाला है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिलेटेड है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली नहीं पढ़ने वाले हैं कि वो होता क्या है क्या नहीं, पर हम उसका फॉर्मूला जरूर देखने वाले हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी स्कोर का मतलब क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। आई कांट राइट इट हियर क्योंकि वो सर अभी कितनी क्लास बाकी है? बस 10 मिनट और बचे, ओके लेस देन 10 मिनट्स, ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी क्यों निकालना चाहते हैं,
क्योंकि हमने KDE ड्रॉ किया है। ये देखो जो हिस्टोग्राम था आपका वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं था, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में KDE की, अब हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, जो कि कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला फॉर वंस। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा into 2 pi and we have exponential e to the power minus 1 by 2 divided by x minus mu upon sigma whole term square। तो z स्कोर जो हमारा है, जैसे हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है तो उसके बाद ये जो हमारा ये पीडीएफ इसका ड्रॉ होके आएगा। देखो ये क्यूमुलेटिव, ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो आपका कर्व अभी अभी यहाँ पे बन के आया है, ठीक है, ये अभी ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको नॉर्मल के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, और नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बन के आएगा ना, उसका x की वैल्यू तो आपको मालूम है, ये रहा आपका x, और ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा अंडरस्कोर 2 पाई e की पावर माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय द x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल टर्म स्क्वायर। ठीक है, तो आप x और y, आपका y जो है इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करना होगा किसी भी डेटा के लिए जो आपने उठाया है, उसके किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, किसी भी डेटा पर्टिकुलर सीरीज के लिए या डेटा फ्रेम के लिए, डेटा फ्रेम के कॉलम के लिए, तो आप x की वैल्यू आपको मालूम होगी कि जो भी आपके टर्म्स हैं आपके उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, और आप उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ है आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर डेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो है इसके लिए हाइट ज्यादा है, इसका मोड अप है, इसका मोड थोड़ा कम है, इसका मोड थोड़ा बीच में है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं आप हमेशा कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक बार जब हम डेटा को ना नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक बार हम अपने डेटा को स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, विच मीन्स के माइनस सिग्मा से सिग्मा के बीच में 68% डेटा हो जाता है हमारा, और मीन इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो उसके बाद हम अपने डेटा को किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी शिफ्ट और स्केल कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे कि लेट्स से द एग्जांपल इज कि मैं पॉपुलैरिटी पता करना चाहता हूँ, मैं पता करना चाहता हूँ कि फेसबुक पे मैं कितना पॉपुलर हूँ, या फिर मैं ट्विटर पे कितना पॉपुलर हूँ, या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे कितना पॉपुलर हूँ। तो फेसबुक पे एवरेज नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो हैं दैट एनी पर्सन कैन हैव इज ऑलमोस्ट 200। ओके, लगभग 200 फ्रेंड्स होते हैं सभी लोगों के औसतन। इसका मतलब क्या है कि फेसबुक पे मीन नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू 200। ठीक है, और ट्विटर पे ये थोड़ा ज्यादा हाई है, ट्विटर पे लगभग 350 के आसपास है। तो ट्विटर पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट ईच पर्सन हैज इज क्लोज टू 350। तो अगर मुझे पता लगाना है कि मैं कितना पॉपुलर या अनपॉपुलर हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ स्केलिंग माय नंबर जिसके लिए कि मीन का वैल्यू 0 हो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे मीन की वैल्यू 50 हो। ठीक है, कि मेरा डेटा ऐसे शिफ्ट कर दो कि इसकी मीन की वैल्यू 50 हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और हो। तो उस केस के लिए मैं अपना डेटा कुछ x माइनस म्यू वाला जो पार्ट है उसको मैं इस तरीके से शिफ्ट कर सकता हूँ कि मेरा मीन 50 निकल गया। इसके भी अपने खुद के तरीके होते हैं, हालांकि आई एम नॉट श्योर कि आपको इसका अभी इसका इस्तेमाल करने वाले हो, पर हाँ, अगर आप कभी आगे बढ़ते हो और आपको स्केल डाउन करने की या फिर शिफ्ट करने की जरूरत है इस तरीके से कि मीन की वैल्यू 0 होने के अलावा कुछ और हो जाए, तो आप अपने डेटा को पहले स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद आप जिस भी तरीके से उसे कन्वर्ट करना चाहते हो आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो ये अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक के लिए देखते हैं, जैसे ब्लू वाले हैं तो यहाँ पे भी ब्लू वाले के लिए देखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करता, नहीं ये यहाँ पे ऊपर की तरफ टच कर रहा है, या फिर ये बोलूँ कि यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को कभी टच करके 0 नहीं होता, और ये भी टच करके 0 नहीं होता। कोई बताना चाहेगा कि इसकी वजह क्या होती है?
एनीवन वांट टू टेक अ गेस कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है कि वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता? Okay, let me ask another question. Okay, uh, the question is, क्या आप चांद पे पहुंच सकते हो? इसका जवाब क्या होगा? और इसका आंसर मैथमेटिकली टर्म से सोच के बोलना है। ठीक है, मैथमेटिक लॉजिकली सोच के इसका जवाब देना है, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए आपका आंसर। क्या आप चांद पे पहुंच सकते हो? कोई भी जवाब दे सकता है इसका, बहुत सारे लोग इसमें से एक भी जवाब दे सकता है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। क्या आप चांद पे पहुंच सकते हो? या मैं ये पूछूं कि आज से 50 साल बाद क्या आप चांद पे जा चुके होगे, यानी एक बार विजिट एटलीस्ट कर चुके होगे चांद को, क्या आज से 50 साल बाद? कोई तो जवाब दो। हाँ, शिवाली सिंह, कर सकते हैं। ओके, स्वीटी के का आंसर मुझे पसंद आया, स्वाति का आंसर भी पसंद आया, स्वीटी का दूसरा आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओके, आप में से जैसे शिवाली ने कहा हाँ, और किसी ने मना नहीं किया वैसे, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ और ना और मे बी, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों एंड पे देखूँ ना, ये देखो, ये हमारा प्रोबेबिलिटी को डिग्निफाई करता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, तो ये बता रहा है कितना प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे जो भी नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यहाँ पे इस रीजन में जो भी नंबर्स आते हैं ना, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होती हैं वो चीजें। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप चांद में पहुंच सकते हो, तो उसके हाँ और ना होने दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप ब्रेकफास्ट करने वाला, क्या आप अगले 4 घंटे में खाना खाने वाले हो, इसकी प्रोबेबिलिटी एक बार को हाई हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन कि आप चांद पे पहुंच सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। इसका आंसर आप सीधा यस भी नहीं बोल सकते, सीधा नो भी नहीं बोल सकते। बताता हूँ क्यों। अगर आपको लगता है कि आप चांद पे पहुंच सकते हो 50 साल में, तो हो सकता है, क्योंकि ये चीजें सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर 100% वन या फिर 100% जीरो हो जाए। बहुत रेयरली कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली हमारे डेटा के अंदर स्पेसिफिकली, जब भी हम कोई टास्क करेंगे। तो जब चांद पे जो पहुंचने की बात है, लेट्स सपोज सिर्फ अगले 50 साल में चांद पे सिर्फ एक ही फ्लाइट जाए, और उस फ्लाइट पे आपके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आर बॉर्न फ्रॉम नाउ टू 50 साल बाद तक। ठीक है, और वन डिवाइडेड, आई मीन आप सिंगल पर्सन हो तो आप वन, टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि उस टाइम में बॉर्न कर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट जो कि इस 50 साल में जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग ऑन दैट शिप, ठीक है, लेट्स सपोज एक नहीं 1000 शिप जा रहे हैं, स्टिल 1000 शिप होने के बाद भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग ऑन दैट शिप दैट इज गोइंग टू दैट टू मून इज रियली रियली लो। ठीक है, वो जीरो के बहुत करीब है, लेकिन वो जीरो भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप चांद पे जाना ही नहीं चाहते हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कल को अर्थ खत्म होने वाला है और आपको चांद पे जाना पड़ जाए। So the probability of you going to going to moon or not going to moon is, both of them are so low, but they are, I mean कि वो जीरो के आसपास हैं, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होते। तो लाइफ में हमारे यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को दिखाता है कि हमारे लाइफ में ना कुछ भी 100% सर्टेन या फिर 100% अनसर्टेन नहीं होता। एक जो शक की बीमारी है वो इंसान को हमेशा ही रहती है, जरा सी छोटा सा दिल का कॉर्नर होता है जहाँ पे थोड़ा सा शक होता है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होता है, या फिर थोड़ा सा सर्टेनिटी होता है। ठीक है, जहाँ पे होप नहीं होना चाहिए वहां पे भी थोड़ा सा होप होता है, और जहाँ पे होप होना चाहिए वहां पे भी थोड़ा सा
होप नहीं होता। दोनों ही चीज़ों की हमारे पास मतलब अवेलेबिलिटी है हमारे लाइफ में, और ये जो दोनों एंड है ये हमारा उन्हीं पॉइंट्स को सिग्निफाई करता है। तो ये जो आपका लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टेल्स है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, नेवर एवर। इसीलिए जब आप इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाओगे, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, राइट। पहले 0.1 था, फिर 0.2, तो पहले 0.1, फिर 0.3, ये ऐड होता चला गया। क्यूमुलेटिव तो आप सभी को मालूम है, 10 तक मैथमेटिक्स सभी ने पढ़ी है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको वो ही दिखाता है कि किस तरीके से आपका ये बढ़ रहा है, कितना तेजी से या कितना स्लो बढ़ रहा है। अगर आप इसकी जितना ज्यादा आपका थिनर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही स्लो होगी शुरुआत में। ये बीच में तो आपको दिखाई देगी ही, लेकिन आपका उसका जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा सा उतना ही स्लो होगा, और जब ग्रोथ होगी तो बहुत तेज गति से उसकी ग्रोथ होगी, एकदम से उसकी ग्रोथ हुई और फिर बाद में आके एकदम से रुक भी जाएगी उसी तरीके से। अगर आपका डेटा कुछ ये थोड़ा सा आई शुड बी फैट शेमिंग, बट ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा फैट होगा तो अ, अ, तो इसमें क्या होगा कि ये आपका थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो ही मूव करेगा, लेकिन उससे पहले मूव करना शुरू कर देगा और उसके बाद में भी मूव करना कंटिन्यू करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन ये कितना थिक है या थिन है, मच बेटर, कितना थिक है या थिन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पर्सन का अगर टोटल करियर स्पैन देखना चाहते हो तो उसमें जो आपका ग्रोथ हो जो आपको नजर आएगी, अगर आपको लगातार ग्रोथ नजर आ रही है बीच में बहुत लंबे टर्म तक, इसका मतलब ये है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें काफी ज्यादा वेरिएंस है। देखो यहाँ पे वेरी बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और अगर उसके लाइफ में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, एक कुछ बहुत कम साल है जिसमें ग्रोथ देखने को मिली और बाकी तो जिंदगी कट गई, तो वो कुछ ये ब्लू वाला ग्राफ है जो आपको नजर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कभी भी किसी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से डायरेक्टली इन्फर कर सकते हो, ठीक है। डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लगभग सब कुछ इंफॉर्मेशन है। दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिविंग यू अ प्रोबेबिलिटी कि ये इस इवेंट का यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.9। तो अगर मुझे कल स्टॉक मार्केट में अगर ये मुझे दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर बैंक का जो स्टॉक मार्केट में कल इसका इसका कल ये प्रॉफिट में जाने वाला है, अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉडल है और जो कि 90% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो आई एम गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर वन एज कम्पेयर टू द वन जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 ना बढ़ने की है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर फॉर्म में प्रोवाइड करता है, और इसीलिए हम किसी भी डेटा के लिए सबसे पहले उसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट करते हैं, और उसके बेसिस पे उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं डिपेंडिंग और हमारे पास डेटा कैसे निकल के आया, और उसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही स्टैंडर्डाइज करें डिपेंडिंग ऑन हमारा टास्क, पर स्टैंडर्डाइज करना डेटा को इज अ गुड हैबिट, ओके, which we should be cultivating, okay okay। I hope कि ये आप लोगों को इतना पार्ट क्लियर रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्यों हम किसी भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्यों उसको समझने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें उसमें से जानने को मिलती है। अब आज का लास्ट टॉपिक है कि क्वेश्चन आयर कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। जब भी हम क्वेश्चन आयर की बात करते हैं या फिर सर्वे प्रिपेयर करने की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि आपके क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, या फिर अगर प्रॉपरली लिंक्ड भी हो तो इस तरीके से लिंक्ड हो कि मतलब वो एक दूसरे से प्रॉपरली डिराइव ना किए जा सके, ठीक है, जिससे कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा यूजफुल हो। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिसमें एक पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है, में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके दूसरा कॉलम अगर हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे दो कॉलम हमारे लिए किसी काम के नहीं है। ऐसा एक ही कॉलम हो तो ज्यादा बेहतर है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो इंडिपेंडेंट हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करेंगे तो हमें उसका डेटा का फॉर्मेट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आउटपुट का जो फॉर्मेट है, यस नो का फॉर्मेट आप लेना चाहते हो, 0-1 का फॉर्मेट लेना चाहते हो। अगर यस नो लेते हो तो क्या और कोई मे बी का भी ऑप्शन इसमें हो सकता है क्या? तो आपको मिसिंग ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे कि आप कहीं ऑप्शंस मिस ना कर रहे हो, क्योंकि आपके ऑप्शंस मिस करने की वजह से कई बार डेटा में बायसनेस आ सकती है, ठीक है। तो
डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रॉब्लम क्या है उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए उसका पता लगाना, उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और सारे ऑप्शंस को कवर करना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी चीज़, आपका जो हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे जैसे कि अगर आप सर्वे कर रहे हो और आप लोगों से पूछ रहे हो कि क्या 15 अगस्त को हॉलिडे होनी चाहिए क्या, सपोज आप ये सर्वे में यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है। तो अब इसमें हाइपोथेसिस क्या है कि आई मीन आप तो कुछ मान के चलोगे ना अपनी तरफ से कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों से सर्वे कर रहे हो, लेकिन आप अपने लोगों पे वो हाइपोथेसिस थोपोगे नहीं, आप उनको कोई अपनी तरफ से बायसनेस नहीं दोगे कि होनी चाहिए नहीं हो चाहिए। आप यू आर गोइंग टू आस्क देम इन सच अ मैनर कि उनका अपना पर्सनल व्यू सामने निकल के आए। दूसरा चीज, क्वेश्चन और सर्वे पे ये भी होता है कि कई बार क्या बोलते हैं इसको, कई बार हम क्वेश्चनायर प्रिपेयर करते हैं और हम उन्हें ऐसे एरिया में ले जाके शेयर कर देते हैं, जैसे कि क्वेश्चनायर मुझे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है मैंने, बट मैं उसको शेयर कर रहा हूँ नोएडा में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का नंबर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू दिल्ली, आई मीन काफ़ी दूर दूर है। तो वहाँ पे आप मुझे ज़्यादातर लोग जो मिलेंगे वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, वो हो सकता है जॉब करने वाले लोग। तो अब उन एक स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर किया गया सर्वे अगर एक नॉन स्टूडेंट पर्सन उसको फिल कर रहा है तो वो डेटा हमारे लिए थोड़ा थोड़ा बायस हो जाएगा, क्योंकि वो अब स्टूडेंट नहीं है और वो जिंदगी को अलग नजरिए से देख सकता है। ठीक है। तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि जो हमारे पास लोग आए या फिर जिनसे हम जो भी हमारे लोग हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे सर्विस को, वो कौन है, हमारा ऑडियंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत मैटर करता है। और हमें कोशिश हमेशा ऐसी करनी है कि ऑडियंस जितना न्यूट्रल हो उतना ज़्यादा बेटर हो, आई मीन कि बायस ना हो। बाय न्यूट्रल व्हाट आई मीन टू से इसकी वो बायस ना हो। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि किसी भी क्वेश्चनर को प्रिपेयर करने से पहले हमें जो ऑप्शंस देते हैं हम लोग वो जितना नैरो डाउन हो सके उतना, जैसे कि मैंने बोला यस नो और मे बी, क्या मे बी भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। जैसे कि मैं क्वेश्चनर प्रिपेयर करने से पहले मैं कुछ तो हिसाब रखूंगा लोगों का कि कितने परसेंट लोग यस, कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट लोग मे बी जवाब दे सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मे बी का परसेंट लगभग 1-2% ही है तो मैं मे बी ऑप्शन को रखना ही नहीं चाहूंगा, मैं यस और नो ही रखना चाहूंगा। राइट। या फिर लेट्स से कि मेरे रिक्वायरमेंट क्या है वो मे बी को अलाउ ही नहीं करती तो मैं मे बी का ऑप्शन उसमें से हटा दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, मेरा डेटा, कुछ पर्टिकुलर डेटा रोज जो हो जाएंगे वो नॉन यूजफुल हो जाएंगे हमारे लिए। लास्ट चीज जो है वो साइज ऑफ क्वेश्चनायर। ठीक है। क्वेश्चनायर आपका हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हो खान एकेडमी पे या फिर बाकी जैसे कि क्या होते हैं यूरेका हो गया या फिर और भी वेबसाइट्स होंगे, राइट। तो वो आपको फॉर्म्स भी देते हैं, लेकिन उस फॉर्म में लगभग आपके पास 6-7 सवाल ही आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट हमसे सर्वे फिल कराती है और हम उससे बहुत दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट 60 सवाल लेके हमारे पास आती है एकदम से कि ये 60 सवालों का जवाब दो। तो जितना शॉर्ट क्वेश्चनर होगा उतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि लोग जो उसका जवाब देंगे वो इंटरेस्ट लेके देंगे। अगर आपके पास 25 सवाल है इसमें तो लोग 10-12 सवाल का जवाब देने के बाद क्या होता है कि इसको दे के बस खत्म करो। आपने खुद ने भी कई बार ऐसा किया होगा, और आप अगर आपने कभी क्वेश्चनर ट्राई किया होगा विद लॉन्गर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकता है कि हुई हो। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, और क्वेश्चनर का फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जैसे कि क्या क्वेश्चनर आपका ऑन पेपर होना चाहिए या फिर क्वेश्चनर आपका इंटरनेट पे शेयर होना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास ऑडियंस क्या है, आपका टास्क क्या है उसके ऊपर। ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हो तो अपने क्वालिटी ऑफ पेपर उसमें आप कैसी स्पेसिंग दे रहे हो, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। उसके अलावा पिक्चर्स का यूज करना है या नहीं करना, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट ना लिखा हुआ हो मेरे क्वेश्चनायर के ऊपर जो कि लोगों को बायस्ड कर दे, मतलब किसी एक फॉर्म का जवाब देने के, मतलब किसी एक तरह का जवाब देने के लिए। तो हमें ये भी इंश्योर करना होता है जो हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो नॉन एम्बाइगस होना चाहिए। इट मीन्स कि हम क्या सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए उसमें कि ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो कि ये सवाल पूछा गया है, इसमें कुछ, इसका कुछ और भी मीनिंग हो सकता है क्या। नहीं, क्वेश्चन शुड बी डायरेक्ट एंड नॉन एम्बाइगस। ठीक है। और जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए सारे। ठीक है। कोई भी एम्बाइगस, कॉम्प्लेक्स, सजेस्टिव, वेग या सेंसिटिव
या नॉर्मेटिव या फिर हाइपोथेटिकल या फिर पर्सनल क्वेश्चन उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर हमेशा बायस्ड या फिर नॉन वैल्यूएबल होते हैं हमेशा हमेशा। ठीक है, और या दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हो, अगर अपना डेटा प्रिपेयर करने के लिए किसी भी फॉर्म का, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे बहुत प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके ममता, नाउ आवर क्लास इज ओवर, सो I'm going to stop the recording and we're going to proceed to the question answer session. Okay.